Hey guys, so welcome back to my channel, and this is day 4 of a 100 days coding challenge, and this is part 2. Since we were not able to cover all of the session in one go, we thought of splitting it into part 1 and part 2. So if you haven't seen the part 1, I'll be giving the link in the description box below to check that out. And if you are a new viewer, you can find the whole playlist on my channel, or I'll be again providing the link in the description box below. So do check that out and then continue this video. And don't forget to subscribe to the channel. Right now we are there on 110 subscribers, and our goal for this month is like 200 subscribers by the end of this month. So do share with your friends and help growing our family, our community with me. So now let's get into the video, and in the previous video we were able to cover till button element. So let's see what all we'll be covering in this video. So in this video we are going to cover name attribute, then checkbox input element, radio input element, select input element, range input element, text area, and at the last we'll be doing one practice question. So stay tuned without skipping the video, and I'll cover the name attribute and I'll get back to you guys. Don't run away. तो इस वीडियो में हमने कवर किया नेम एट्रीब्यूट, और नेम एट्रीब्यूट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल, एंड व्हेन वी सबमिट आवर फॉर्म्स दीज नेम एट्रीब्यूट्स आर सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ नेम एंड वैल्यू पेयर. फॉर एग्जाम्पल जो हमने लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट किया, इनपुट टाइप इज टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर में हमारा अपना एंटर नेम है, एंड देन आईडी इज यूज़र नेम. सो नेम जो है, नेम एट्रीब्यूट यूज़ करके हम यूज़र नेम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक यूज़र नेम में क्या लिखा गया है, इन ऑर्डर टू मेक द बैक एंड सर्वर अंडरस्टैंडेबल कि व्हाट इज रिटन इन दैट यूज़र नेम, द डेटा विच इज़ बिन रिटन इन दैट यूज़र नेम, वी यूज़ द नेम एट्रीब्यूट. सो नेम और वैल्यू के पेयर में नेम जो है दैट इज़ द यूज़र नेम, एंड जो हम वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल यूज़र नेम, लाइक you can use whatever username, Instagram username you have. So जो वो वाला value है will be sent in the URL form itself, will be presented in the URL form itself. So that is it in name attribute. Let's skip to the next one, and it is checkbox input element. So in this video we learnt about checkboxes. You already know what checkboxes are. जब हम कहीं नए वेबसाइट पे एंटर करते हैं तो हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस का एक लिस्ट आ जाता है, लाइक we have to study all the terms and conditions, and then we have to put a tick at the end, checkbox में, and then we can continue or proceed on whatever page you want to. So in that case scenario we use the input type as checkbox, and including that we are able to produce a checkbox on our forms. So checkbox जो है usually यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल हमें कोई सब्जेक्ट का लिस्ट है और उस सब्जेक्ट के लिस्ट में हमें 2-3 ऑप्शंस चूज़ करने हैं. सो उस केसेस में भी हमारे पास चेकबॉक्स का यूज़ होता है. और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हाउ आर वी सपोज टू फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट या बिटवीन द नेम एट्रीब्यूट एंड द boxes. So using the label form we can form a connection, और जैसे ही हम I am 18 above पे क्लिक करेंगे that checkbox will automatically get checked. So जब हमारा tick box जो है वो highlighted रहता है, we are supposed to think that it is in on position, and then when the checkbox is not highlighted it is supposed to be in off position. So this is it for checkboxes. Now let's get on to the next video, that is radio input element. So in this video we covered radio input element. So last जैसे हमारे पास था checkbox input element, और checkbox में क्या होता है, we can take on to multiple options, but radio element में जो होता है उसका आंसर जो है we can only choose a particular one. So radio element हमारे पास कब कब यूज़ होता है? मोस्टली जब हमारे पास कोविड के टाइम पे हम एग्ज़ाम्स देते थे ऑनलाइन. सो गूगल फॉर्म्स वर बीन प्रोवाइडेड टू अस. सो इन दोज फॉर्म्स यू आर ओनली सपोज टू सेलेक्ट अ सिंगल आंसर इंस्टेड ऑफ मल्टीपल. सो वहाँ पे अपने वी कैन यूज़ द input as radio, like type is equal to radio, and you can put name as whatever thing you want to, like apple, and then in order to group them together, for example जैसे हमने पढ़ा कि name attribute में क्या होता है, नेम और वैल्यू का पेयर बन जाता है. सो इन द बैक एंड सर्वर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दी
data put on in this particular area. So वैसे ही उसको pass on करने के लिए we label it. And value का attribute जो होता है, value में we will again be writing the same thing, like we have chosen apple, so in order to pass it on to the backend server we will be using value is equal to apple. So now let's move on to the next one, that is select input element. So the next thing we covered is the select input element. So select input elements क्या होता है, जब हमारे पास कोई like particular किसी भी इंसान को, now we are supposed to collect the data of their professions. So professions are of many types. So in order to produce a drop down menu we use the select element. So हम अगर select करेंगे, select करने के बाद हमारे पास एक drop down menu बन जाएगा. So in order to input like उनके अंदर options include करने के लिए अगर select के बाद you have to write option element, and option में we have to give a value. For example doctor है तो we have to give doctor का value, and then we have to write what is will be the placeholder का value क्या होगा. So that, and then we can close the select का option का value. We covered was range input element. Range तुम्हें पता ही है, when we have a particular minimum and maximum amount और उसके बीच में हमें कोई value choose करनी है तो we use the range element. So range element जो है वो most commonly use होता है जब हमें volume जो है अपना वो up करना है या down करना है. So in that cases we use the range element. So input में हम लोग type लिख के we can use range, and उसके बाद we can define minimum कितना चाहिए and maximum कितना चाहिए. So minimum define करने के लिए we'll be using min is equal to whatever value, and maximum we can use max is equal to whatever value. And जो name है like whatever will be displayed कि वो volume है या it's a range for like frequency का range है या जो भी है, that will be included by using the name element. So in that way we can use the range in our forms. And हमारे पास like उस चीज़ को like volume कभी कभी होता है कि they are increased in a particular form, like steps में like हम लोग step decide करेंगे कि वो सिर्फ 10 के step में बढ़ेगा. So whenever we click on that वो सिर्फ 10 के step में बढ़ेगा, like 10 था पहले volume, so नेक्स्ट हमारा जो है वो 20 पे जाएगा if we click on that. So similarly we can use the step element to define कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे वो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा. And then if you want to predetermine कि इसका वैल्यू जब हम ओपन करेंगे पेज पे कितना होना चाहिए, so we can use the value is equal to 70, and जब हम ओपन करेंगे उस पेज को तो वैल्यू जो है वो 70 पे तुम्हें predefined मिलेगा और उसको हम वेरी कर सकते हैं eventually. So this is it in the range element. Now let's get back to the text area. So the next thing is text area. So text area is used to collect comments या reviews. जब हम लिखते हैं तो हमारे पास like होता है कि we have to give a feedback या we have to give provide our suggestions या हमें इस पे comment करना है. So in that case scenarios we have been provided with boxes where only texts are allowed in those boxes. So in order to create those boxes we use the type as text area. So text area का जो है name जो identified होगा उसका name can be given as feedback, and उसका value जो भी input होगा we can write is value is equal to feedback, and placeholder में we can write please provide your valuable feedback, and वैसे ही the name and value will be grouped together and sent it to the backend server. So that is it in this video. Let's get back to our laptop and do the practice questions, and then we will be done with day 4. So we are back on our laptop. This is the question we are supposed to do. Create a search option that redirects the search request to Google. So let's first start with our boilerplate code. Let's use the exclamatory mark. And now after that we are supposed to make a form. So let's use the tag, form tag, to input a form. After that we have to write action. Like action, I already told you in the previous video that action
इज़ डिटरमाइन कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे रीडायरेक्ट होगा हमारा इन्फॉर्मेशन. सो एक्शन को हम फिलहाल के लिए खाली छोड़ देते हैं एंड लेट्स बैक टू इनपुट एलिमेंट. एंड इनपुट में वी हैव टू ऐड टाइप एंड देन इनपुट में हमें अपना टाइप डिटरमाइन करना है कि वो कौन से टाइप का हमारा बॉक्स होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट चेक बॉक्सेस, सेलेक्ट, रेडियो एंड ऑल. सो हमारा यहाँ पे जो है वो सिंपल टेक्स्ट होने वाला है एंड इन दैट टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नेम और नेम इज़ सपोज टू बी क्यू. सो हमारा भी जो सर्च URL होगा आफ्टर वी गेट इन टू दैट आई विल शो यू कि हमने वहाँ पे नेम में क्यू लिखा है. एंड प्लेस होल्डर जो होने वाला है, प्लेस होल्डर आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज़, प्लेस होल्डर जो हमारे लाइट शेड में हमारे बॉक्सेस में जो लिखा आता है कि हमें क्या लिखना है, उसके अंदर क्या एंटर करना है इन ऑर्डर टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड, उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं. सो प्लेस होल्डर में हमने सर्च इन गूगल लिखा. आफ्टर दैट वी आर सपोज टू मेक अ बटन. सो सबमिट बटन हमने बना दिया. नाउ we have to go to Google and let's just see what is this search engine या what is its URL. Let's open Google and let's search for a mango first. I mean apple. And after apple, let's just copy the URL. And paste it over here on our action place. So action tag में हमने अपना URL पेस्ट कर दिया और हमें अभी ये वाला URL से हम रीडायरेक्ट होंगे हमारे एप्पल पेज पे. सो वी हैव टू डिलीट ऑल द इंफॉर्मेशन आफ्टर द सर्च क्वेरी. सो यहाँ पे देखिए आफ्टर सर्च इट इज़ Q एंड Q इज इक्वल टू एप्पल बिकॉज वी सर्च्ड फॉर इट. सो Q जो है दैट इज़ द नेम एट्रीब्यूट वी स्टडीड अबाउट इन द फर्स्ट प्लेस. सो जो Q जो है वो नेम एट्रीब्यूट है. सो वी हैव टू कीप इट एम्प्टी ओवर देयर आफ्टर सर्च एंड उसको सेव करने के बाद लेट्स गेट बैक. लेट्स ओपन आवर गूगल क्रोम एंड लेट्स सी इफ इट्स presentable or not. So let's open our VS Code again. So this is it. Here we are able to form a search option in the Google itself. Let's just open it and let's see if it's working or not. इसको maximum like see mango, we search for mango and here we are able to form mango and Q जो है Q का value is mango. So Q is the name attribute over here. So नेम के जगह पे हमने Q डाला था. एंड प्लेस होल्डर यू हैव ऑलरेडी सीन कैसे वो सर्च इन गूगल जो है हमारा लाइट शेड में पीछे आता है. सो दैट इज़ द प्लेस होल्डर. सो नाउ लेट्स गेट बैक. दिस इज़ अ सेकेंड क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वी आर सपोज टू मेक अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसपे हमारा टेक्स्ट एरियाज है, जिसमें हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, देन वी हैव अ चेक बॉक्स ओवर देयर एंड रजिस्टर जो है वो हमारा सबमिट बटन है. सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रॉयलर प्लेट कोड हमने जनरेट कर लिया. सो नेक्स्ट वी विल बी यूजिंग div tag h3 tag to represent the heading registration form. So registration form लिखने के बाद we will be using div tag. सो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए हम लोग div tag उसको सेपरेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए विल बी यूजिंग div tag. सो div tag लिखने के बाद इनपुट एलिमेंट करेंगे एंड इनपुट एलिमेंट में टाइप जो है वो टेक्स्ट है. सो लेट्स राइट टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर. आफ्टर दैट विल बी राइटिंग प्लेस होल्डर बिकॉज जो फर्स्ट नेम है वो हमारा जो है वो लाइक प्लेस होल्डर के जगह पे है. दे आर जस्ट सपोज टू टेल यू कि उसमें क्या आना चाहिए. सो लेट्स राइट प्लेस होल्डर में फर्स्ट नेम एंड देन उसके बाद उसका नेम, जैसे कि हमारे अभी सर्च लास्ट क्वेश्चन में जो है वो सर्च करने के बाद Q का वैल्यू जो हमने उससे लिखा था लाइक वट एवर वी रोट मैंगो फॉर इट. सो सर्च का हमें यहाँ पे लिखेंगे F नेम फॉर शॉर्ट फॉर्म. फर्स्ट नेम का जो वो है वो हम शॉर्ट फॉर्म हमने F नेम लिख दिया. लेट्स टाइप अनदर इनपुट एंड इस बार टाइप अगेन टेक्स्ट होगा बिकॉज लास्ट नेम लिखना है. एंड आफ्टर दैट प्लेस होल्डर में इस बार हम लोग लिखेंगे लास्ट नेम. सो प्लेस होल्डर
Placeholder will contain the last name. एंड देन नेम में आ जाएगा हमारा शॉर्ट फॉर्म जो कि है एफ नेम. सो वी आर डन ओवर हियर. इन सबको ग्रुप कर लेंगे हम लोग अभी. लेट्स गो टू गूगल एंड सी कि हमारा जो फॉर्म है उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम विजिबल है या नहीं. सो सी, फर्स्ट नेम दिखाई दे रहा है बट हमारा जो लास्ट नेम है वो दिखाई नहीं दे रहा है. सो लेट्स चेक कि क्या गलत किया हम लोगों ने. सो यहाँ पे हम लोगों ने इसके बाद प्लेस होल्डर आर नहीं लगाया. सो प्लेस होल्डर पे आर लगाने के बाद लेट्स सी क्या होता है. सो लेट्स रिफ्रेश इट. रिफ्रेश करके देखते हैं. हमने यहाँ पे एंडिंग नहीं लिया, क्लोज नहीं किया टैग को. सो लेट्स जस्ट क्लोज और सेव करके वापस देखते हैं. सो हियर वी गो. सो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का जो है बॉक्सेस बन गए हैं. लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ प्लीज़ सेलेक्ट जेंडर. सो इनको पहले हम लोग डिवीजन टैग में इनपुट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. और दिस इज़ इट. सो नेक्स्ट हमारा जो है हमें बनाना है प्लीज सेलेक्ट जेंडर. सो उसके लिए अलग से अनदर डिव टैग बना लेते हैं. और डिव टैग बनाने के बाद वी हैव टू यूज़ द इनपुट एलिमेंट. सबसे पहले हम लोग पहले हम ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए लेट्स यूज़ द सेलेक्ट एलिमेंट. लेट्स यूज़ सेलेक्ट एंड सेलेक्ट करने के बाद वी हैव टू मेंशन कि उसका नेम क्या है, वैल्यू क्या है एंड आईडी क्या है. सो लेट्स फर्स्ट राइट कि नेम क्या है एंड द नेम इज़ सपोज टू बी जेंडर एंड आईडी लिखते हैं इसके बाद एंड आईडी इज़ अगेन जेंडर. एंड आफ्टर दैट उसका क्लोज कर देंगे. एंड अब लिखेंगे हम लोग ऑप्शंस. सो ऑप्शन 1 वी हैव इज़ कि उसका पहले हमें नेम आइडेंटिफाई कर, वैल्यू स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो वैल्यू विल बी, लेट्स राइट फीमेल फर्स्ट. सो वैल्यू में हमने फीमेल लिखा एंड आफ्टर क्लोजिंग द ऑप्शन टैग हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू डिस्प्ले कि वहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या आएगा. दैट वुड बी फीमेल. सो लेट्स राइट फीमेल ओवर हियर इन द वैल्यू की जगह पे. लेट्स राइट फीमेल एंड आफ्टर दैट अगेन वहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए यू हैव टू क्लोज द टैग एंड अब लिखेंगे फीमेल अगेन for the display. Now let's get on to the second option. Option में भी सेम वही जैसे अभी ऊपर लिखा है वैसे ही लिखेंगे option and then value will be male and after closing it we have male और उसके बाद close हो जाएगा. MALE male.
सो हमारा मेल और फीमेल का ऑप्शन जो है वो हो गया है, राइट, तैयार हो गया है. सो अगेन इनको डिव कर देते हैं, लाइक लेबल कर देते हैं. पहले लेबलिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हमको किसी चीज़ के बीच में कनेक्शन फॉर्म करना है तो वी यूज़ द लेबल. सो इसमें फॉर जो है वो हमारा जेंडर है, एंड देन वी हैव लेबल, लेबलिंग क्लोजिंग हो गया, एंड देन we'll write please select the gender. So let's just save it and see, please select gender, female and male. We have the both options. So अब next हमारा division element बना के we will be writing the do you agree to all terms of services, और इसके बाद check box बनाना है. So let's first write do you agree to all terms of services or not. So सबसे पहले हम अपना जो text है वो लिख लेते हैं. Do you agree to all terms of service, and after that we have to make a check box. So check box बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा select चेक बॉक्स टैग. सो इनपुट टाइप, इनपुट में टाइप जो है वो हम लोग डिसाइड करेंगे चेक बॉक्स. सो लेट्स राइट चेक बॉक्स ओवर हियर. चेक बॉक्स लिखने के बाद वी विल हैव टू राइट ID इज इक्वल टू TOS स्टैंड्स फॉर टर्म्स ऑफ सर्विसेज, अग्री. सो नेक्स्ट विल अगेन क्लोज द टैग. नेम जो है उसमें भी TOS अंडरस्कोर अग्री लिख देंगे, एंड देन यहाँ पे विल फॉर्म अ लेबल, and label में we again will write name, for is equal to TOS underscore agree. So इनके बीच में हमें फॉर्म करना है लिंक. So TOS agree. So let's close it, और इनके बीच में लिखना है yes I agree, ताकि हमारा चेक बॉक्स के बाद येस आई अग्री आए. सो वी हैव रिफ्रेश द पेज एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट. सो हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो बन गया है, एंड वी फॉरगॉट टू एक्चुअली मेक अ फॉर्म ओवर हियर. सो लास्ट हम पहले बटन बना देते हैं, रजिस्टर का बटन. सो रजिस्टर लिख देते हैं, बटन लिख के. दीज आर द बटन टैग्स एंड बटन, एंड इन सबको हमें फॉर्म में इंक्लूड करना है. सो लेट्स जस्ट गो एंड मेक अ फॉर्म आउट ऑफ इट. सो रजिस्टर नीचे आ गया. वी यूज्ड अ BR टैग. सो ये हो गया. सो अभी फॉर्म का टैग यूज़ कर लेते हैं. सबसे ऊपर फॉर्म लिख दिया हम लोगों ने, एंड देन फॉर्म का जो है वी हैव टू राइट एक्शन कि वो कहाँ पे जाएगा. सो लेट्स राइट फॉर्म एंड देन इन बिटवीन विल राइट एक्शन, और एक्शन जो है लेट्स राइट जस्ट एक्शन स्लैश सर्वर. लेट्स जस्ट राइट ऐसे ही रैंडमली कुछ भी लिख देते हैं. सो लेट्स जस्ट सेव इट, एंड यहाँ पे अभी एक्शन लिखते हैं. एक्शन हम लोग लिख लेते हैं स्लैश एक्शन. सो लेट्स सेव एंड रिफ्रेश करने के बाद सो लास्ट नेम यहाँ पे है हमारा, एंड लेट्स राइट समथिंग ओवर हियर, और यस पे दिवा दिया एंड रजिस्टर कर दिया. सो ये जो URL है, लेट मी जस्ट मैक्सिमाइज इट. सो हमारा जो URL है उसमें फर्स्ट नेम जो हमने F नेम लिखा था नेम के वैल्यू में, सो वहाँ पे हमारा जो लिखा है GF वो आ गया, एंड L नेम में हमने जो भी एंटर किया था वो आ गया, एंड जेंडर में जो है हमने फ़ीमेल ऑप्ट किया था, सो फीमेल आ गया, एंड अग्री ऑन है या ऑफ है वो बता दिया.
So that is it for this video. I hope you all enjoyed it and found it informative, and if you did, don't forget to comment in the comment section below and do subscribe to the channel. Bye bye.